اے اللہ اس تقریر سے مسلمانوں کی بدعقیدگی دور کر دے اور امت مسلمہ کو ائمہ اکرام اور سلف صالحین کے صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین اکرام، یہ تقریر آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزارت شؤون الاسلام والاوقاف و دعوت و ارشاد مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا۔ ہم حامل شریعت، ہم حامل شریعت، توحید اپنا نعرہ، توحید اپنا نعرہ۔ سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ۔ بجھنے نہ دیں گے ہرگز، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں۔ دنیا میں رہبانیت کا خاتمہ کیا، اسلام نے لڑکیوں کے قتل کی رسم کو بند کروا دیا، اسلام نے لڑکیوں کی قتل کی رسم کو بند کروا دیا۔ اور آج بھی ہمارے دیش کے اندر بہت پہلے تک آج بھی لڑکیوں کو باعث عار سمجھا جا رہا تھا، اور آج بھی سمجھا جا رہا ہے۔ جنوبی ہند کی رپورٹ میرے سامنے ہے، وہ اس کے اندر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کر پتہ لگاتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر انہیں ہندوؤں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو اسے دواؤں کے ذریعے وہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اتیاچار، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی دہشت گردی جو فرد کے جو گھر کے اندر ناچ رہی ہے یہ۔ لیکن وہ اسلام تھا، کسی عرب کے دھرتی کے اندر جب لڑکیوں کو زندہ ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی اس کے گلے کو دبا دیا جاتا تھا، یا اگر کسی کی بچی بڑی ہو گئی تو اس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اسلام نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا اور اسلام نے اس کو مٹایا دنیا کے اندر۔ اور اسی طرح سے اسلام نے اپنے شیدائیوں پر ام الخبائث شراب کو حرام قرار دیا۔ اسلام نے ہمت، شجاعت، بہادری، بردباری کی تعلیم دی ہے۔ ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے، ہندوستان کی گردن اسلام کے احسانوں سے دبی ہوئی ہے۔ ہندوستانی فلسفی شعر و سخن اور فن تعمیر کو چار چاند لگائے ہیں۔ اسلام حریت و اخوت کا داعی ہے۔ یہ ایک ہندو لیڈر کا، ایک ہندو ادیب کا یہ کلام ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اندرا گاندھی کو ان کے پتی پرمیشور کے مرنے کے بعد زندہ نہیں رہنا تھا، انہیں تو ختم ہو جانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برہمنوں کا یہ آج بھی قانون ہے، منو کا یہ آج بھی قانون ہے۔ ہندو دھرم کی نہایت ہی پوتر اور مقدس کتاب منو، اس کے اندر آج بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ پتی اگر مر جائے تو پتنی کو اس کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ جو ہے جا کر کے انگار میں اسی کے ساتھ سو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اسلام تھا کہ اندرا گاندھی کو پتی کے ساتھ جلنا نہیں پڑا، اور ایک بہت بڑی لیڈر بن کر کے ہندوستان میں ابھری وہ، اور انہوں نے عزت کمایا ہندوستان کے اندر انہوں نے عزت کمایا۔ لیکن یہ اسلام تھا جس نے ان کو ان کے ساتھ جلنے سے روکا، ورنہ ان کا اپنا دھرم یہ تھا کہ جو ہے فیروز گاندھی کے ساتھ وہیں ان کو ستی ہو جانا چاہیے تھا۔ سروجنی نائیڈو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میرا تعلق ایسے دھرم سے ہے جسے عام طور پر خدائی دھرم کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے، یعنی ہندو دھرم ہے۔ اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اس قابل پاتی ہوں کہ اس عالمگیر اخوت و بھائی چارگی کا آپ کے سامنے اقرار کروں جس کے نقوش میرے دل پر موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خدا بن کر نہیں آئے، بلکہ انسان ہو کر انسانوں ہی کی طرف وہ آئے۔ وہ پوتر انسان ایک نفرت سے بھرپور، بغض و تعصب سے مخمور دنیا کی طرف آیا، اور اس صحرا کے اندر جو اس کی پیدائش کا گہوارہ ہے، ایک نہ مٹنے والی صداقت و سچائی کا اس پر انکشاف ہوا جو رب العالمین کے دو پاکیزہ شبدوں میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اس خدا کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جو تمام قوموں، تمام ملکوں اور مذہبوں کا ایک ہی خدا، ایک ہی پرمیشور ہے، وہ اللہ۔ اسلام میں حقیقی اور خالص جمہوریت کا رنگ موجود ہے جو موجودہ بے حقیقت اور بدنام جمہوریت سے کہیں زیادہ بلند۔ یہ سروجنی نائیڈو یہ کہتی ہے،
और फिर इस मौजूदा दौर में अगर मैं पेश करूं किसी नेता को, तो रामविलास पासवान जो अपने जमाने में रेलवे मिनिस्टर थे, उनका क्या कहना था और अखबारों में सुर्खियों के साथ उनका बयान आया था। रामविलास पासवान ने कहा था कि हम 36 करोड़ खुदाओं को पूजने वाले, हमारे पास 36 करोड़ खुदा हिंदुस्तान में हैं जिनसे हम प्रार्थना करते हैं और उनसे हम दुआएं करते हैं। 36 करोड़ खुदाओं के पूजने वाले, फिर भी हम गुर्बत के इस निचली सतह पर हैं कि हम कासे गदाई लेकर, हम कशकोल लेकर बड़े बड़े मुल्कों के सामने भीख मांगते हैं। लेकिन अरब को देखो, एक अरबी पैदा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस एक शख्स ने उन अरबों को एक अल्लाह का परिचय करवाया और वो लोग एक अल्लाह को, एक ईश्वर को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। उसके बावजूद भी उनकी जमीन सोना उगल रही, उनकी जमीन सोना उगल रही। ये मौजूदा दौर के लीडर रामविलास पासवान का बयान है, मैं नहीं कहता। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये एक नहीं, बड़े बड़े क्रिश्चियनों के बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े लोग हैं, ईसाइयत के, मसीहियत के, सब लोगों ने इस्लाम की तारीफ की है, इस्लाम के बारे में अपने अपने एहसासात और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। लाखों हजारों लोग हैं, गैर मुस्लिमों की बातें तारीख और अदब की किताबें मौजूद हैं। मेरा सिर्फ उनको पेश करना मकसूद नहीं है, बल्कि दुनिया वालों के सामने ये पेश करना है कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ संसार के वासियों, तुम अमन और सलामती चाहते हो, तुम्हें सुकून और इत्मीनान चाहिए, तो दूर क्यों जाते हो? तुम्हारे बगल में इस्लाम मौजूद है। अरे तुम्हारे बगल में सरापा इस्लाम का एक नमूना ममलकत सऊदी अरबिया मौजूद है, तुम इसको क्यों नहीं देख लेते हो? तुम्हारे अपने दरमियान मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी धर्म उसके अंदर मौजूद है, वो तुम्हें दुनिया में भी अमन और सलामती की जमानत देता है और मरने के बाद भी तुम्हें अमन और सलामती की जमानत देता है। दुनिया में भी सुकून और इत्मीनान और मरने के बाद भी स्वर्ग तुम्हारा मुकद्दर होगा। लेकिन अगर तुम इस इस्लाम को नहीं मानोगे तो गैर मुस्लिम होकर के, हिंदू होकर मरोगे, तो दुनिया के अंदर भी चिताओं में जलोगे, आगों में। मरने के बाद आखिरत में भी तुम्हें, बल्कि जलने की इब्तिदा तो मरने के बाद ही से शुरू हो जाती, मरने के बाद ही शुरू। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने गैर मुस्लिमों की जुबानी इस्लाम की तर्जमानी बयान कर रहा था और बतला रहा था कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इस दुनिया का क्या हाल था। यह एक हकीकत है कि इस्लाम से पहले, जैसा कि मैंने बतलाया, कि इस दुनिया के अंदर जुल्म और ज्यादती का गलगला था। शराफत और नजाबत की जगह दरिंदगी और हैवानियत इंसानियत का शार बन चुकी थी। शराबखोरी, ज़िनाकारी, बदकारी, चोरी और चकारी, फहाशी और औरतों की खरीदो फरोख्त और कत्ल गारतगरी, ऊंच और नीच, तबकाती कशमकश और गुलामों के साथ जुल्म और ज्यादती, यतीमों, बेवाओं और बीवी औरतों के ऊपर जुल्म और सितम, लड़कियों को पैदा होते ही कब्रों के अंदर दफन कर देना, और वो तमाम, और ये पूरी दुनिया के अंदर। ये ना कोई सोचे कि ये सिर्फ हिंदू धर्म में, ईसाई यानी अरब ही के अंदर था, नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म और औरत को बिल्कुल बल्कि बड़ी ही निचली सतह पर इंसानियत के वो लोग जिंदगी गुजार रहे थे। ईसाई धर्म एक अलग कलीसा के नाम पर जनाब अली अपना तफ्तीशी महकमा कायम करके उन दुनिया वालों को, नीच लोगों को, छोटे लोगों को, गरीबों को जुल्म ज्यादती के साथ वो सता रहे थे। और इधर और पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई थी। ईसाइयत का नंगा नाच जुल्म ज्यादती के नाम पर नाचा जा रहा था, चर्च का निजाम लोगों को पेश किया जा रहा था, और इधर हिंदुस्तान में ये ब्राह्मण, ये खुदा बने बैठे हुए थे, और पूरा हिंदुस्तानी समाज ऊंच और नीच का शिकार था, और आज तक है। और सबसे ऊंचा तबका ब्राह्मण का माना जाता था, और उसके बाद उस सबसे निचला तबका शूद्र का माना जाता था, और इन शूद्रों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। जो छोटे लोग थे, इन शूद्रों को, जानवरों को, इनको मलिच समझा जाता। और आज भी ये हिंदू धर्म के अंदर उनकी अपनी मजहबी किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। वो तो मुसलमानों को भी मलिच कहते हैं। मलिच यानी नापाक, अपवित्र, ये नापाक लोग, अस्तगफिरुल्लाह, मुसलमानों के साथ। और ये सब तालीमात हिंदू धर्म की अपनी जो है पवित्र मुकद्दस किताबों के अंदर मौजूद है। मतलब ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, मनुस्मृति है, गौतम है, भागवत है, गीता वगैरह, इसमें सब भरी पड़ी कि हिंदुओं के 4 जात थे और 4 तबका आज भी हैं। एक ब्राह्मण है, दूसरा कश्तरी है, तीसरा वैश्य है, और चौथा शूद्र है। चुनांचे आज भी इनका अकीदा है कि ब्राह्मण ये ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ है, इसलिए इसका मकाम है ब्रह्मा के सर से पैदा हुआ। क्षत्रिय ये ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुआ, छाती से, और वैश्य ये ब्रह्मा के नाभ से पैदा हुआ है, और शूद्र ये निचले तबके से पैदा हुए हैं। और हिंदुओं में ये 3 जातें बहुत बड़ी मानी जाती हैं। कौन सी? ब्राह्मण, और इसी तरह से क्षत्रिय और ये वैश्य, ये तीनों जातें बड़ी मानी जाती हैं। मनु जो
हिंदू धर्म की बड़ी ही मुकद्दस किताब है, निहायत ही धार्मिक पुस्तक है। वो क्या कहता है इंसानों के बारे में, इस तबकाती दर्जात के बारे में, उसे भी मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं कि क्यों इसके मानने वाले आज जो है अमन और सलामती की तलाश में है, क्यों इसके अंदर अमन और सलामती की शिक्षा और उसकी तालीम मौजूद नहीं। चुनांचे मनु अपनी किताब के अंदर यह कहता है, मनु जो हिंदू धर्म की बड़ी ही पाकीज़ा किताब है, उसके अंदर यह बात लिखी हुई है कि शूद्र की लड़की, शूद्र यानी निचले जात की लड़की जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ है, खैर शूद्र की लड़की अगर ब्राह्मण अपने पलंग पर बिठा ले तो ब्राह्मण नरक में जाता है। ब्राह्मण कहां जाता है? नरक में जाता है। और अल्लाह अकबर, आओ जरा इस्लाम को भी तुम्हें हम बतलाएं कि गुलाम इब्नुल गुलाम, गुलाम जादे को, गुलाम जादे हजरत जैद रज़ी अल्लाह ताला गुलाम थे। गुलाम, गुलाम का मकाम क्या होता है? जो बाजारों में खरीद और फरोख्त किया जाता है, बेचा जाता है। अल्लाह अकबर, उस एक गुलाम को खरीद कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंहबेला बोला बेटा करार दिया था। यह मकाम दिया था कि वो उनका मुंह बोला बेटा था। मोहम्मदुर